ایک ایسے وقت میں کہ جب نیتن یاہو کے بڑھتے ہوئے ظالمانہ اقدامات کی وجہ سے اسرائیل کے دہائیوں پرانے یورپی اتحادی اسرائیل سے تنگ آ گئے ہیں اور دور ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر صدر ٹرمپ بھی اسرائیلی اقدامات سے فاصلہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور ٹرمپ انتظامیہ خود کہہ رہی ہے کہ اسرائیل دنیا میں سفارتی تنہائی کا شکار ہو چکا ہے، تو ایسے میں دنیا کے ایک بڑے ملک کا ایک ایسا لیڈر ہے جو نہ صرف اپنے خارجہ تعلقات کو داؤ پر لگا کر اسرائیل سے قربتیں بڑھا رہا ہے، بلکہ اس نے نیتن یاہو کے انسانیت کے خلاف مظالم پر اب تک مذمت کا ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور اس تعلق کی وجہ سے وہ لیڈر ایران امریکہ جنگ میں کوئی کردار ادا نہیں کر پایا ہے، اور اس کا ملک خاموش تماشائی بنا رہا۔ خود ملک کے اندر اس بات پر تنقید ہو رہی ہے کہ سارا کردار پاکستان اور قطر نے ادا کیا، پاکستان نے اتنا بڑا کردار ادا کیا تو وہ ملک کیوں خاموش بیٹھا رہا؟ حالانکہ اس ملک کے ایران اور امریکہ دونوں سے ہی بہترین تعلقات رہے ہیں۔ یہ لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ نریندر مودی ہیں، جو 2014 سے بھارت کے وزیر اعظم ہیں، اور انہوں نے اپنے دور میں بھارت کی فلسطین پالیسی کا رخ اسرائیل کے حق میں پوری طرح سے موڑ دیا ہے، اور مشرق وسطیٰ کے حالیہ تنازعات میں کئی نازک مواقع پر نظر آیا کہ نریندر مودی ہی وہ واحد لیڈر تھے جو یورپی ممالک یا خود امریکہ سے بھی پہلے اسرائیل کی حمایت کرتے نظر آئے، امریکہ سے بھی پہلے۔ اور اب تک تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ دنیا میں بھارت ہی اب اسرائیل کا واحد بڑا اتحادی نظر آتا ہے۔ ساتھ ہی نریندر مودی اور نیتن یاہو کے حوالے سے یہ تاثر بھی ابھر رہا ہے کہ دونوں کی شخصیت، طرز سیاست اور انداز حکومت میں کئی مشترکہ اقدار یا خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ دونوں ہی جمہوری ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر سخت اتھارٹیرین نظریات کے حامل ہیں، اور ملکی اداروں اور آزاد میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دونوں ہی مذہبی اقلیتوں کو کچلنے کے لیے جانے جاتے ہیں، خاص طور پر مسلمانوں سے انتہا پسندی کے نام پر تو دونوں ہی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ نیتن یاہو اپنے ملک میں یہودیوں کو سب سے برتر قوم سمجھتے ہیں، اسرائیل کو صرف یہودیوں کا وطن سمجھتے ہیں، جبکہ نریندر مودی بھارت میں ہندوتوا نظریے کے تحت صرف ہندوؤں کو بھارت کا مالک اور مختار سمجھتے ہیں۔ اسی طرح دونوں ہی رہنما اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے گریز نہیں کرتے، چاہے اس کے نتیجے میں اپنے ہی ملک میں آگ کیوں نہ لگ جائے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے اس غیر معمولی قربت، حمایت اور مماثلت کے حوالے سے برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز میں تفصیلی رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور بھارت سے اس رپورٹ کے لیے مائیکل سٹاٹ اور آندریس شپانی، جبکہ اسرائیل سے جیمز شارٹر نے حصہ ڈالا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2023 میں جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو پہلی فون کال امریکہ یا یورپ سے نہیں بلکہ بھارت سے موصول ہوئی۔ نریندر مودی نے اس گفتگو میں نیتن یاہو سے بھارت کی جانب سے اسرائیل کے لیے حمایت کا اظہار کیا۔ بعد میں انہوں نے اس پر لکھا کہ بھارت اس مشکل گھڑی میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ رپورٹ کے مطابق نریندر مودی کا یہ اقدام ان کے اور نیتن یاہو کے درمیان گزشتہ 12 سالوں میں قائم ہونے والے مضبوط تعلقات کی عکاسی کرتا تھا۔ یہ تعلق نریندر مودی اور نیتن یاہو کی اس مشترکہ سوچ پر مبنی ہے کہ جس میں وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو مشترکہ جنگ قرار دیتے ہیں، اور ساتھ ہی اپنے ملک کو اپنی مذہبی اکثریت کا وطن سمجھتے ہیں۔ یعنی اسرائیل صرف یہودیوں کا وطن ہے اور بھارت صرف اور صرف ہندوؤں کا وطن ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ دونوں رہنما ایک جیسی اتھارٹیرین خصوصیات بھی رکھتے ہیں، اور دونوں نے اپنے ملک میں ایسے ماحول کو پروان چڑھایا ہے کہ جس میں مسلمان اور عیسائی اقلیتوں کے خلاف بھی دشمنیوں میں شدت آ گئی ہے۔ ملک کے آزاد اداروں کی طاقت کمزور ہو گئی ہے، غیر ملکی این جی اوز کی سرگرمیوں پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بھارت اور اسرائیل کے یہ تعلقات خفیہ معلومات کے تبادلے، نگرانی، اربوں ڈالرز کے اسلحے کی فروخت، مشترکہ اسلحہ سازی، تجارت، زرعی ٹیکنالوجی اور ثقافتی روابط تک پھیلے ہوئے ہیں۔ سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ مودی اور نیتن یاہو اکثر فون پر بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی 28 فروری کو ایران پر حملے سے پہلے نیتن یاہو سے ملاقات کرنے والے آخری عالمی رہنما بھی کوئی اور نہیں، نریندر مودی ہی تھے۔ اسرائیل نے جب تہران پر بمباری کی تو نریندر مودی نے نیتن یاہو سے بات کی اور ان سے جلد امن بحال کرنے کا کہا، لیکن ایران پر حملوں پر تنقید یا مذمت تک نہیں کی۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ نیتن یاہو نریندر مودی کے قریبی تعلقات اسرائیل کے ان حالات سے بالکل مختلف رخ پر ہیں کہ جن میں اسرائیل کی عالمی تنہائی بڑھتی جا رہی ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی تباہ کن کارروائی اور مقبوضہ ویسٹ بینک میں جارحیت کی وجہ سے اسرائیل کے قریبی مغربی اتحادی بھی اس سے دور ہو رہے ہیں۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے گرفتاری کے وارنٹ کے بعد نیتن یاہو کے یورپی ممالک میں ناپسندیدہ شخصیت بن چکے ہیں، وہاں کا سفر تک نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ امریکی صدر ٹرمپ بھی ان پر تنقید کرنے لگے ہیں کیونکہ لبنان میں اسرائیلی کارروائی ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے امریکی کوششوں کے لیے خطرہ بن رہی تھی۔ لیکن بھارت میں
भारत में इसराइल से मुताल्लिक इस सारी सूरत हाल को मुख्तलिफ अंदाज से देखा जाता है। जिंदाल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के डीन प्रोफेसर श्रीराम कहते हैं, नरेंद्र मोदी और उनके हामी समझते हैं कि इसराइल दुनिया में रेडिकल इस्लाम के खिलाफ खड़ा है, जो कि एक बुरी ताकत है और भारत को भी इससे लड़ना चाहिए। इसीलिए इसराइल और नरेंद्र मोदी या उनके हामियों में एक नजरियाती हम आहंगी मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक वो भारत जो कभी फलस्तीनी मौक़िफ़ की हिमायत करता था और इसराइल पर तनकीद करता था, अब वो इसराइल के बहुत ज़्यादा करीब हो चुका है। इसराइली थिंक टैंक जेरूसलम इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड सिक्योरिटी के जोनाथन स्पायरकेर कहते हैं कि ऐसे हालात में कि जब दुनिया भर से और ख़ास तौर पर मगरबी यूरोप से इसराइल पर दबाव बढ़ रहा है, तो एशिया में एक बड़े तिजारती शराकतदार का होना जो जोग्राफियाई और शायद नज़रियाती लिहाज से भी दुनिया के बारे में मुश्तरका सोच रखता हो, इसराइल के लिए एक बड़ी ताकत का बाइस है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इब्तिदा में इसराइल के क़याम की मुखालफत की थी। 1947 में भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के सिफारतकारों ने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की तकसीम के ख़िलाफ़ वोट दिया था और इसराइल को अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल करने की भी मुखालफत की थी। यहाँ तक कि कई दहाइयों बाद यानी 1992 में जाकर भारत ने मुकम्मल तौर पर इसराइल को तस्लीम किया था। इसके अलावा भारत और इसराइल के ताल्लुकात में एक और अहम मोड़ 1999 की कारगिल जंग के दौरान सामने आया। कारगिल जंग के हवाले से बाद में सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक जब भारत पाकिस्तान से जंग के दौरान मुश्किलात का शिकार था, तो उस वक्त इसराइल ने भारत को मार्टर गोले और लेज़र गाइडेड मिसाइल फराहम किए थे। हालांकि उस वक्त भारत को 1998 के एटमी तजर्बे की वजह से मगरबी ताकतों की तरफ से असलहे की पाबंदियों का सामना था। तो मदद की किसने? फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक इसराइल ने। रिपोर्ट के मुताबिक इसी तरह जब नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, तो उन्हें नेतन्याहू में एक ऐसा नज़रियाती साथी यानी आइडियोलॉजिकल सोलमेट नजर आया जो उन्हीं की तरह सोचता था। 2017 में नरेंद्र मोदी ने एक अहम सियासी कदम उठाते हुए इसराइल का दौरा किया और यूं वो इसराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय वज़ीर आज़म बन गए। फिर अगले साल नेतन्याहू ने भी भारत का सरकारी दौरा किया। भारत में इसराइली सफ़ीर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू के ये दौरे बहुत अहम साबित हुए। दोनों ममालिक के ताल्लुकात अवाम में ज़्यादा खुलकर सामने आए और ज़्यादा लेजिटिमेट बनकर उभरे। रिपोर्ट के मुताबिक अब तकरीबन एक दहाई बाद भारत इसराइली असलहे का बड़ा खरीदार है और नए हथियारों की तैयारी और पैदावार में अहम शराकतदार है। भारतीय थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में मशरिक़ वस्ता के शोबे के सरबराह कबीर तनेजा कहते हैं कि इसराइल ही अक्सर भारत को ये टेक्नोलॉजीज़ फराहम करता है और ये साजो सामान उन शराइत के बगैर मिलता है जो असलहा फ़रोख्त करने वाले दूसरे ममालिक आयद करते हैं। इसराइली फ़ौज में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला बराक एंटी मिसाइल सिस्टम भारत और इसराइल की कई कंपनियां मुश्तरका तौर पर तैयार करती हैं। इसी तरह इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद भारत की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के साथ ताउन करती है। इसके अलावा भारत के अमीर तरीन शख्स गौतम अडानी की कंपनियां इसराइल की एक कंपनी के साथ मिलकर सर्वेलेंस ड्रोन तैयार कर रही हैं। गौतम अडानी की कंपनियां इसराइल की असलाहसाज कंपनियों के साथ मिलकर भारत में छोटे हथियार बनाने पर भी काम कर रही हैं, जबकि अडानी पोर्ट्स ने इसराइल की सबसे बड़ी बंदरगाह हाइफा पोर्ट में 70% शेयर्स खरीदने के लिए $1.2 अरब भी खर्च किए। इंडस्ट्री से वाकिफ अफराद के मुताबिक भारतीय कंपनियां अब इसराइली डिज़ाइन के किलर ड्रोन्स जैसा कि हेरोप तैयार करना शुरू हो चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सूरत हाल से वाकिफ एक शख्स ने बताया कि इसराइली फौजी अफसर भारत के फौजी हेडक्वार्टर्स के बाकायदा दौरे करते हैं और ईरान के साथ हालिया जंग के दौरान भी 2 दर्जन तक इसराइली फौजी अफसर वहां गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और इसराइल का ये ताउन दिफा से भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसराइली मुज़ाकरातकार भारत के साथ एक आज़ाद तिजारती मुआहदे पर काम कर रहे हैं, जबकि नौजवान इसराइली शहरी मिलिट्री सर्विस के बाद अक्सर गोवा के साहिलों या भारत के योगा सेंटर्स का रुख करते हैं। साथ ही इसराइली साइंसदान भारतीय माहिरीन को खुश्क इलाकों में पानी के ज़खायर के हवाले से तरबियत देते हैं। यहाँ तक कि हज़ारों भारतीय शहरी इसराइल में काम कर रहे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान दीगर सकाफती रवाबित भी बढ़ रहे हैं। मंसूबों से वाकिफ 2 अफराद के मुताबिक मोदी के हामी हिंदू कौम परस्त दानिश्वर इसी महीने इसराइल का दौरा करेंगे ताकि वहाँ के हुक्काम और माहिरीन तालीम से मुलाकात करके सहयूनियत के बारे में सीख सकें। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इसराइल की खातिर गैर मामूली खतरात भी मोल लिए हैं। अगस्त 2022 में कतर ने भारतीय नेवी के 8 साबिक अफसरान को गिरफ्तार किया और बाद में उन्हें सजाए मौत सुना दी गई। दोनों ममालिक ने इस केस की तफसीलात नहीं बताई, लेकिन इस मामले से आगाह एक शख्स ने उस वक्त फाइनेंशियल टाइम्स को बताया था कि ये 8 अफराद कतर के आबदोस प्रोग्राम के बारे में इसराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। भारतीय शहरी कतर में मौजूद होकर किसके लिए जासूसी कर रहे थे? इसराइल के लिए। बाद में एक सरकारी भारतीय कंपनी के कतर से बड़ी मकदार में LNG खरीदने के 20 साल मुआहदे के बाद
उन अफसरान को रिहा कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और इसराइल को दहशत गर्दी के खिलाफ नाम निहाद जंग में मसरूफ ममालिक के तौर पर दिखाने का तस्वुर पॉपुलर कल्चर में भी नजर आता है। रवां साल मार्च में रिलीज होने वाली भारतीय फिल्म धुरिंदर की कहानी मशहूर इसराइली टीवी ड्रामे फाउदा से मिलती जुलती है। धुरिंदर में एक भारतीय अंडरकवर कमांडो को पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के एक जिहादी नेटवर्क को तबाह करते दिखाया गया है, जबकि इसराइली ड्रामे फाउदा में एक अंडरकवर इसराइली यूनिट फलस्तीन में हमास के एक मतलूब अहलकार की तलाश कर रहा होता है। अहम बात यह है कि धुरिंदर इसराइल में भी दिखाई गई और नई दिल्ली में इसराइली सिफारत खाने ने सिफारतकारों को फिल्म के मरकजी रिसर्चर के साथ गुफ्तगू के लिए दावत भी दी थी, जबकि रवा साल फरवरी में इसराइल के दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी ने इसराइली सीरीज फाउदा के अदाकारों से मुलाकात की थी, जबकि अब बॉम्बे में इसराइल के काउंसिल जनरल इस ड्रामे की अहम शख्सियात को भारत लाने का मंसूबा बना रहे हैं। इसराइली काउंसिल जनरल के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म मोदी कुछ ऐसा चाहते थे कि जो इसराइल और भारत के लोगों को कई सालों तक जोड़े रखे। इसलिए मेरे जहन में पहला ख्याल यही आया कि फाउदा की टीम को भारत लाया जाए। हम फाउदा को धुरिंदर के साथ जोड़ना चाहते थे। रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी की इसराइल से कुर्बत ने भारत के खारजा पॉलिसी के हलकों को परेशान कर दिया है। वो इस बात पर तशवीश रखते हैं कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय हुकूमत फ़लस्तीनी मौक़िफ़ को कम अहमियत दे रही है, गज़ा में इसराइली कार्रवाई पर तनकीद नहीं कर रही है और ईरान जैसे इलाकाई शराकतदारों के साथ ताल्लुकात को पसे पुष्ट डाल रही है। साबिक भारतीय सिफारतकार नरूपमा राव कहती हैं कि इसराइल से मोदी की कुर्बत ये तासुर पैदा कर सकती है कि भारत ने फ़लस्तीनी हुकूक से मुताल्लिक अपने देरीना मौक़िफ़ को कमज़ोर कर दिया है। मेरा मानना है कि ये तासुर बहुत अहमियत रखता है, ना सिर्फ अरब दुनिया में बल्कि ग्लोबल साउथ में भी। भारतीय अपोजिशन जमात की रहनुमा सोनिया गांधी ने गुज़िश्ता साल गज़ा जंग पर भारत की खामोशी को इंसानियत और अखलाकियात दोनों को पसे पुश डालना करार दिया था। उनका कहना था कि यह रवैया भारत के स्ट्रेटेजिक मफादात के बजाय नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की ज़ाती दोस्ती की वजह से इख्तियार किया गया है। इसके अलावा हाल ही में कांग्रेस ने ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत न करने पर वज़ीर आज़म मोदी को इखलाकी बुज़दिली का मुर्तकिब करार दिया था और मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ईरान पर हमले से फौरी पहले नरेंद्र मोदी के इसराइल के दौरे से यह सियासी तासुर उभरा कि भारत ईरान पर फौजी जारियत की हिमायत करता है।